السلام علیکم. خیابان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے کچھ عرصے کی دوری، کچھ دقت، کچھ غیر حاضری کے بعد اور خاص رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج آپ سے دو بدو آپ کے پیش ہونے کا مقصد بنیادی طور پر UFC ویگاس 41 کی مین ایونٹ فائٹ جو کسی نہ کسی حد تک ٹائٹل امپلیکیشنز رکھتی ہے. پاولو کوسٹا سابقہ ٹائٹل چیلنجر، کم و بیش 11 فائٹس کی لگاتار ناقابل شکست اسٹریک رکھنے والے فائٹر بدقسمتی سے اسرائیل اڈیسانیا سے ہار گئے تھے. ان کا مقابلہ ہے مارون ویٹوری سے جو 5ویں نمبر پر موجود ہیں مڈل ویٹ کی رینکنگ میں. لیکن تھوڑی سی جو اسٹوری میں ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاولو کوسٹا کی غیر سنجیدہ اور میری مانے تو احمقانہ جو پالیسی رہی، جو ان کا طرز عمل رہا، اس کی بنیاد پر فائٹ سے 24 گھنٹے قبل یہ عقدہ کھلا کہ اب یہ فائٹ مڈل ویٹ پر ہونے کے بجائے چونکہ پاولو کوسٹا کم و بیش 210 پاؤنڈ وزن لے کر آئے تھے تو ممکن ہی نہ تھا کہ اسے مڈل ویٹ پر کیا جائے. اب یہ فائٹ لائٹ ہیوی ویٹ ڈویژن میں ہونے جا رہی ہے. 5 نمبر پر موجود ہیں مارون ویٹوری، دوسرے نمبر پر موجود ہیں پاولو کوسٹا، پاور ہٹر ہیں. اب تک یہ 13 مقابلے لڑ چکے ہیں جن میں سے 12 مقابلے جیتنے میں کامیاب رہیں. ان 12 میں سے 11 مقابلے ناک آؤٹ یا ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بنیاد پر جیتنے میں کامیاب ہوئے. ایک مقابلہ جو بچا وہ یہ سبمیشن کی بنیاد پر جیتنے میں کامیاب رہے. ان کے مخالف مارون ویٹوری ہیں، 17 مقابلے یہ لڑ چکے ہیں، 5 بار ان کو شکست ہوئی ہے. ایک مقابلہ ایسا ہے جس میں نو کانٹیسٹ ہوا تھا، یعنی مقابلے کو بے نتیجہ قرار دیا گیا تھا. جو مقابلے یہ جیتے ہیں ان مقابلوں میں 2 مقابلے ایسے ہیں جب انہوں نے اپنے مخالف کو ناک آؤٹ یا ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی عظیمت سے دوچار کیا. 9 بار سبمیشن کے ذریعے مخالف کو ڈھیر کرنے میں کامیاب رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ خطرناک جارحانہ لیول کے جوجٹسو ایکسپرٹ ہیں. بنیادی طور پر براؤن بیلٹ ہے لیکن آپریشنل ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے کہ کئی تناظر میں کئی حوالوں سے بلیک بیلٹ سے بھی کچھ بہتر پرفارم کر جاتے ہیں. اور دیکھا جائے تو ان کے آج کے فائٹ کے مخالف بھی بلیک بیلٹ ہیں، یا ان کا کم از کم کہنا ہے کہ وہ بلیک بیلٹ ہیں. لیکن اب تک جو ان کی 12-13 فائٹس رہی ہیں اس میں کبھی بھی گراؤنڈ گیم دکھاتے ہوئے نظر نہیں آئے، بلکہ خطرناک حد تک باکسنگ پہ انحصار کرتے ہیں. پاور پنچ کے ذریعے اپنے مخالف کو ڈھیر کرنے میں اکثر مقابلوں میں، بلکہ یوں کہیے کہ سبھی مقابلوں میں کامیاب رہے. صرف ایک مقابلہ ایسا ہے جس میں سبمیشن کی بنیاد پر کامیاب رہے. ایک ہی مقابلہ ایسا ہے جس میں ہارے تھے. وہ ہارے تھے چیمپئن اسرائیل اڈیسانیا سے. مارون ویٹوری جن سے ان کا مقابلہ وہ بھی ہارے تھے ابھی آخری مقابلہ اپنا اسرائیل اڈیسانیا سے. لیکن دونوں کی ہار میں بڑا واضح فرق ہے. پاولو کوسٹا کو یہ کراچی کی زبان میں کہا جاتا ہے بکری کر کے ہرایا تھا اسرائیل اڈیسانیا نے، جبکہ مارون ویٹوری آپ سے کم و بیش 2 سال قبل جو ان کا پہلا مقابلہ تھا اسرائیل اڈیسانیا سے، وہ پھر کراچی کی ٹرمنالوجی میں حلق میں آ گئے تھے. اسرائیل اڈیسانیا کے جان مشکل بنا دی تھی اور ایک ورلڈ کلاس اسٹرائکر بظاہر بے بس نظر آیا تھا اس فائٹ میں. لیکن بہرحال اسرائیل اڈیسانیا نے اپنا لوہا منوایا، اپنی بالادستی ثابت کی اور اسپلٹ ڈیسیژن منصفین کے اختلافی فیصلے کی بنیاد پر یہ فائٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے. ان دونوں فائٹرز نے اب تک ماضی میں جن فائٹرز سے مقابلہ کیا ان میں نمایاں طور پر پاولو کوسٹا اوریا ہال کو ہرا چکے ہیں جو کہ خود ایک اسٹرائکر ہے، یوئل رومیرو کو ہرا چکے ہیں جو کہ خود ایک اسٹرائکر ہیں، جبکہ مارون ویٹوری جیک ہرمینسن کو ہرا چکے ہیں جو کہ ڈوئل اسٹائل میں لڑتے ہیں. گراؤنڈ گیم بھی ان کا خاصا بہتر ہے اور اسٹرائکنگ بھی ان کی خاصی مناسب ہے. کیون ہالینڈ کو جو کہ پیورلی اسٹرائکر ہے ان کو بھی ابھی اپنے آخری مقابلے میں انہوں نے ہرایا تھا. ان دونوں کے اسٹیٹس پہ کچھ ایک ہلکی سرسری نظر ڈالتے ہیں. مارون ویٹوری 3.8 سگنیفیکنٹ اسٹرائک فی منٹ لگاتے ہیں جس کی 47% اسٹرائکنگ ایکیوریسی ہوتی ہے، جبکہ 3.4% ضربیں وہ سہتے ہیں. تو اس انداز سے دیکھا جائے خاصا مضبوط جبڑا
इन आदात की निस्बत उनका दिखाई दे रहा है। 63% स्ट्राइकिंग डिफेंस है। ये बात भी इस नुक्ते की गम्माज है कि खासा उम्दा, खासा कारी डिफेंस आर्सेनल रखते हैं मार्विन विटोरी। दूसरी तरफ पाओलो कोस्टा 7.3 घूंसे फी मिनट मारने में कामयाब रहते हैं। बहुत ही वैश्याना किस्म के आदाद हैं ये, लेकिन इसको काउंटर करता हुआ दूसरा नंबर ये है कि फी मिनट 6.7% घूंसे खा भी लेते हैं। तो 7 घूंसे मार के 6 घूंसे खा लेना टेक्निकल स्ट्राइकिंग की टर्मिनोलॉजी में बहुत हौसला अफजा सेहतमंद नंबर्स नहीं है। निस्बतन बूदी परफॉर्मेंस, निस्बतन कमज़ोर कहा जाएगा, लेकिन इन तमामी खामियों पर पर्दा पड़ता है उस भयानक नॉकआउट पावर से जो इनके पंच में है। बहुत ज़्यादा मौका नहीं देते, अगर इनका हाथ लैंड हो जाए आपके ऊपर तो फिर हरीफ के पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं होता। ये अलग बात कि कोई बहुत ही सख्त जान हरीफ है तो उसने इनको खासा टफ टाइम दिया है अदरवाइज़। लेकिन इनकी जो लिस्ट है, जो 13 मुकाबले हैं, उनमें ये ऊरिया हॉल, रोमेरो को हटा के बाकी जितने भी फाइटर्स हैं उनके आप नाम ले लें या उन्हें XYZ कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उन फाइटर्स को मेरा ख्याल है उनके घर वाले जानते हैं या ब्राज़ील के लोग जानते हैं, बाकी आम पब्लिक उनसे इतनी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। लेकिन मार्विन विटोरी जिन फाइटर्स से लड़े वो निस्बतन मुस्तनद हैं, उनका अपना कुछ न कुछ मकाम है, कुछ न कुछ अचीवमेंट्स हैं। और इस सब से हटके बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है जैसे यही स्टेट्स और यही फाइट का टेक्निकल ब्रेकडाउन ही बात को किसी मामले तक, किसी रुख तक, किसी मकाम तक पहुंचाएगा। लेकिन पाओलो कोस्टा के मामले में मैं आपको बता सकता हूँ, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, पिछले कुछ अरसे में नहायत गैर संजीदा तबीयत के हामिल हैं। पिछली फाइट जो इस्राइल अडीसानिया से हारे थे, बच्चों की तरह जिल्लत आमेज़ अंदाज से हारे, और उसके बाद ये कहकर बरीउज़्ज़िम्मा हो गए कि मैंने रात बहुत पी थी। तो अब एक एलीट लेवल, जब आप चैम्पियनशिप मुकाबलों में, जब आप इस्राइल अडीसानिया जैसे किसी कातिल के खिलाफ मुकाबला करने के लिए अखाड़े में उतरते हैं, तो फिर मैंने रात पी थी, इस तरह की बातें ये ज़ेब नहीं देती। और ये बूदी, बेसलेस, बचकाना सी बात थी। मेरा ज़ाती ख्याल है, और बहुत ज़्यादा कई पंडित भी इस नुक्ते की तरफ बाज़ वजूहात की बाइस इशारा दे रहे हैं। और सबसे बढ़ के इनके जो मुखालिफ है इस फाइट में मार्विन विटोरी, वो भी अभी 2 इंटरव्यू पहले इस नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल करा चुके हैं कि पिछले 1-1.5 साल में इनकी फिज़ीक में कुछ वाज़े तब्दीलियाँ सी दिखाई दी हैं। इनका मसल साइज़ कुछ कॉन्ट्रैक्शन का शिकार होता हो नज़र आया है। उसके अलावा जो मसल का शेप है, उसका जो स्क्वेरिश नेचर था, वो अब निस्बतन राउंडिश नेचर की तरफ आ रहा है। तो मैं तो निस्बतन जाहिल लाइल्म सा आदमी हूँ, लेकिन दुनिया में कई ऐसे इल्म वाले हैं जिनका कहना है कि ये इस बात की अलामत है, प्रोबेबली पिछले कुछ अरसे में इन्होंने सख्त स्क्रूटनी के पास PED, परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स, जिनको उर्फ़े आम में आप ममनुआतियात भी कहते हैं, तो कई लोगों का दावा है कि ये वो इस्तेमाल करते रहे हैं तवातुर से। और अब शायद इन्होंने चेक एंड बैलेंस सख्त होने की बायस, अब चूँकि ये चैम्पियनशिप फाइट के महवर में के डोमेन में है पिछले 1-1.5 साल से, तो ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होने के बायस इन्होंने PED यूजेज तर्क की है। तो एक वाज़े डिक्लाइन, एक इन्हितात इनके शेप में, इनके बॉडी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि अडीसानिया की फ़ाइट के बाद से अडीसानिया भी बरमला ये कहते आए थे कि ये PED यूज़र है और मुख्तलिफ ममनुआत अद्वियात मुख्तलिफ औक़ात में इस्तेमाल करते रहे। बहरहाल पी के आने वाले इस फाइट में मिडल वेट पर लड़ने आए थे और फाइट से एक रात पहले पब्लिक को इन्होंने चौंका दिया ये कह कर के नहीं जी मुझे मिडिल वेट पर लड़ना ही नहीं है, मैं लाइट हैवी वेट पर लड़ना चाहता हूँ। तो पहले 195 पाउंड्स और फिर अब बिलाखिर 205 यानी लाइट हैवी वेट की वेट बाउंड्रीज वेट इम्प्लीकेशंस के तहत ये फाइट होगी। पावर, नॉकआउट कैपेबिलिटी सब अपनी जगह इंटैक्ट, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो इन दोनों फाइटर्स का रुझान है, जिस अंदाज से लड़ रहे हैं, मैं बआसानी ये कहने में कामयाब
हूँ, मैं बआसानी ये कह सकता हूँ कि बड़ा तल्ख और बड़ा कठिन वक्त इस फाइट में, इस रात में पाउलो कोस्टा को झेलना पड़ेगा। इब्तदाई कुछ राउंड, 1 या 2 राउंड अपने पावर शॉट्स के जरिए इंटिमिडेट करने की, जेर करने की, जज करने की कोशिश करेंगे मार्विन विटोरी को, लेकिन मार्विन विटोरी के स्ट्राइकिंग डिफेंस के जो स्टैट्स हैं, उसके अलावा इनकी पिछली फाइट्स में जो तर्ज अमल इनका है, जिन फाइटर्स के खिलाफ लड़े हैं, जिस अंदाज से लड़े हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाउलो कोस्टा इनको किसी मौलिक ज़रब से छूने में कामयाब होंगे। और जब ये सारी गैस, जब ये सारी हवा 1, 2 या 3 राउंड में बहरहाल इख्तिताम पजीर होगी, क्योंकि 3 या 2 ऐसे मुकाबले हैं जब ये 5 राउंड की फ़ाइट लड़े हैं पाउलो कोस्टा। उसके अलावा कैरियर में 5 राउंड की फ़ाइट से इनकी शनासाई बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि मार्विन विटोरी मशहूर है, ज़बान ज़दाम है इनका कार्डियो, इनका गैस टैंक, अजीब जिन्नाती से आदमी हैं, बहुत ही बेहंगम अंदाज से घूसे खाते हैं, लेकिन फेड होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो इट्स गोना बी अ टफ नाइट फॉर पाउलो कोस्टा। खयाबान मिक्स मार्शल आर्ट की ऑफिशियल प्रिडिक्शन बात को ज़्यादा लंबा किए बगैर यही किए देते हैं कि ना सिर्फ तीसरे चौथे राउंड में सबमिशन की बुनियाद पर ये मुकाबला हारने में कामयाब होंगे पाउलो कोस्टा, बल्कि मेरा मुशाहिदा ये बता रहा है, साइंस, इशारे, आलामिये कुछ ऐसे हैं कि ना सिर्फ ये फ़ाइट हारेंगे, बल्कि अपनी इन मौजूदा करीबी हालिया माजी की हरकतों की वजह से ये UFC से कट किए जाएंगे। और यही इनका रुझान बता रहा है कि यही कुछ इसी किस्म का इनका प्लान रहा था। और बहुत जल्द ये अपने ब्राज़ीली साथी योएल रोमेरो के साथ, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत जल्दी अपने साथी योएल रोमेरो के साथ बेलाटोर के रोस्टर में नज़र आएंगे। और जो एक मशहूर ज़माना इनकी फ़ाइट हुई थी, मेरा ख्याल है स्प्लिट डिसीजन था वो भी, और कई लोगों के नज़दीक योएल रोमेरो जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन मुनसिफीन ने इन्हें फातेह करार दिया। तो उस फाइट का सेकंड वर्जन, उसका रीमैच, मेरा अंदाज़ा है कि ये फ़ाइट हार के बेलाटोर में शायकीन को देखने को मिलेगा। इस वीडियो के मुतालिक, इस फाइट के मुतालिक आपके ख्यालात, आपकी आरा, आपकी प्रेडिक्शन कि ये फ़ाइट क्या रुख इख्तियार करेगी, कमेंट्स में उसका इजहार कीजिएगा। हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। आने वाले वक्त में मज़ीद किसी नए इवेंट, किसी नई सरगर्मी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हुमायूं भाई मेरा तोबड़ा है, इसमें वीडियो में कोई एम्बेडेड, कोई वीडियो कोई ग्राफिक्स नहीं है। मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत थी। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपकी शिकायत दूर किए देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।